Hello and welcome to the part 2 of the chapter number 2, that is the CSS and JavaScript. In part 1, we learned the fundamentals of the CSS. Now we will focus on to the JavaScript part. So first we try to understand what is the use and purpose of the JavaScript. So first is the two things about the JavaScript. First is a JavaScript is a scripting language, right? Using that we can add the programming content into the website, which makes our web page the dynamic. Now what is the meaning of the dynamic? So using JavaScript we can add any programming logic, right? For example, if you want to perform the any addition, multiplication, subtraction to develop the calculator kind of functionality, right? Or you want to validate whatever data entered by user will enter the proper email ID or not, proper contact number or not, that all kind of functionality we can implement with the help of the JavaScript coding. JavaScript is originally developed by the Netscape company. So it gives the fundamental coding that is similar to the C and Java, but that is not that much advanced, right? If you want to add JavaScript code into your web page, then we have to use one special tag, that is a script tag. Whatever code of the JavaScript must be placed inside the script tag start and script tag end, right? Now we will show one basic simple example of the script tag. So this is a simple example. First we have to start and end of the script tag. Now I want to display any simple message. For that we have to use the document.write. In this, document is known as object and write is known as the method. In this method, whatever message we have passed, that show that message onto the browser, right? Let's show the practically. So we create one new page. Right? Now, if you want to write the any code, then you have to go into the source part, source tab. Now, in this source tab, inside body, I am writing the script tag, start and end of the script tag. I am writing the same code that we shown in this document.write और उसके अंदर हम सिंपल एक मैसेज पास कर देते हैं, सपोज हेलो जावास्क्रिप्ट. Now I save this file. And if I run this file, then you are able to show the message जो हमने write message के अंदर pass किया था, right? Now, if you want to write multiple statement, so that we have to put inside the curly bracket, right? I have not used curly bracket because we have written the single statement in our code. Now let's understand the concept of the function. So function is known as a block of code, but that we can reuse at the multiple places, right? अगर आप simple script of start और end के अंदर code लिखते हैं, तो whenever that code is required, आपको every time वो code फिर से लिखना पड़ेगा. But हम क्या कर रहे हैं, वो group of code को एक name assign कर देते हैं, right? So whenever that particular same code is required, then हमें उसके नेम से ही डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं rather than writing the whole statement for the scratch. So that is the block of code जो हम हमारे वेब पेज के अंदर डिफरेंट लोकेशन पे कॉल कर सकते हैं. तो जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन कीवर्ड यूज होगा एंड कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट एंड के अंदर आप सिंगल या मल्टीपल स्टेटमेंट राइट कर सकते हैं. JavaScript also provide the many built-in functions, right? So one example of the built-in function is the alert function. तो alert function क्या करता है, वो एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज लेता है और हमने जो मैसेज पास किया है वो मैसेज को एज अ पॉपअप मैसेज डिस्प्ले करेगा, राइट? हम फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल हम अलर्ट के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखेंगे दैट इज नोन एज आर्ग्यूमेंट, राइट? और हम उसका कुछ कैलकुलेशन करके हमें कोई वैल्यू यूजर को रिटर्न करनी है तो हम फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट, राइट? सो
Let's simple write one simple code. We write into the notepad and copy into the composer, right? So that it will visible to you. तो हमें कोड लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट टैग यूज करना पड़ेगा. तो हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट और एंड यूज किया है, राइट? इनसाइड दिस हम एक फंक्शन बना देते हैं and give the function name display. Now inside this function we have to compulsory put the curly bracket even though you have the single statement. इसके अंदर हम एक सिंपल अलर्ट मैसेज लिख देते हैं, अलर्ट, और अलर्ट के अंदर हम लिख देंगे हेलो जावास्क्रिप्ट, द सेम मैसेज जो हमने पहले लिखा था, राइट? तो ये हमारा सिंपल फंक्शन रेडी हो गया. बट जो फंक्शन होता है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होता है. नाउ इन प्रीवियस एग्जांपल हमने जो स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट और एंड किया था दैट विल एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली व्हेन पेज इज ओपन. But if I write this code and I open the page, then this will not show any output to the user. Then how can we call this? Or how can we access it, right? So if you want to call any function, then you have to generate the event, right? On event only we can able to access or call this function. So before checking the output, let's understand what is the event is, right? So event is what we can say it's the interactions of the user with browser. Now event generate कब होगी? तो जब भी यूजर हमारी वेबसाइट के अंदर कोई भी इंटरेक्शन करेगा, लाइक सिंपल उसने बटन पे क्लिक किया, तो दैट इज नोन एज वन इवेंट, राइट? तो उस इवेंट पे हम क्या कर सकते हैं, हमने जो फंक्शन क्रिएट किया है उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, राइट? और उस इवेंट पे जो भी हमारा फंक्शन कॉल होता है दैट फंक्शन आल्सो नोन एज अ इवेंट हैंडलर, राइट? तो वो क्या करेगा, उस इवेंट को हैंडल करेगा कि ये इवेंट हुई है तो क्या करना है, देन वी हैव टू एग्जीक्यूट दिस सेट ऑफ स्टेटमेंट, राइट? तो दैट इज कॉल्ड इवेंट हैंडलर. We have too many events available into the JavaScript, right? Here we provide the list of the many events that we can use for writing our code, right? We will show the basic event over here, right? तो इसके अंदर हम सिंपल एक इवेंट ट्राई कर रहे हैं, दैट इज अ क्लिक इवेंट, राइट? तो क्लिक इवेंट कब जनरेट हो रही है, तो whenever you click on any button तो क्या करेगा, क्लिक इवेंट जनरेट होगा, राइट? We have many more event also available in this, right? But we check the click event practically, right? So हम पहले ये जो स्क्रिप्ट टैग है, I will copy this in composer. ओपन द कंपोजर, और इसके अंदर हमने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, राइट? अभी इसके अंदर हम फर्स्टली सोर्स में जाते हैं और सोर्स के अंदर हमने जो स्क्रिप्ट टैग कॉपी किया है उस स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं. तो है कॉपी एंड पेस्ट द स्क्रिप्ट टैग ओवर हियर. नाउ आफ्टर दिस हम यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करते हैं. तो डिफाइन फॉर्म, राइट? फॉर्म का नेम हम लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट. Now, inside form tag, I am taking one simple button over here. तो फॉर्म फिल में जाते हैं. Inside this, I have taken the simple button. We give the button name click and also value on the button click. अभी मुझे क्या करना है, इस क्लिक इवेंट पे मुझे वो फंक्शन कॉल करना है, राइट? तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है एडवांस एडिट करके. तो आपको यहाँ पर एडवांस एडिट के अंदर जाना है, राइट? एडवांस एडिट के अंदर हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट इवेंट पे जाएंगे कि आपको कौन सी इवेंट जनरेट करनी है. तो यहाँ पर एट्रीब्यूट के अंदर आपके पास लिस्ट ऑफ इवेंट्स अवेलेबल है, राइट? दैट वी कैन हैंडल ऑन द बटन. तो मुझे अभी सिंपल क्लिक इवेंट हैंडल करनी है, राइट? तो दिस इज अ सिंपल क्लिक इवेंट. देन यहाँ पर उसकी वैल्यूज है. वैल्यूज में हमें क्या लिखना है, तो वैल्यूज के अंदर हमें फंक्शन रिटर्न करना है. तो रिटर्न, और हमारा फंक्शन का नेम क्या था, डिस्प्ले था. तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है रिटर्न डिस्प्ले एंड ओके एंड ओके. तो हमारे पास यहाँ बटन आ गया है.
I will just save this with our name test1 and we will run this. तो हमारे पास यहाँ पर एक बटन विजिबल है, राइट? आपको अभी जब भी हम इसके पर क्लिक करेंगे तो दिस इज कॉल्ड ए पॉपअप मैसेज, राइट? ये मैसेज कहाँ से आया है? अलर्ट फंक्शन से जनरेट हुआ है, राइट? जब भी आप ओके पर क्लिक करोगे ये मैसेज चला जाएगा, राइट? तो दिस इज व्हाट event is, and this is how function is declared and function is called. Now let's understand what is the use of the variable, right? So variable are mainly used to store any values, right? For example, हमें कैलकुलेटर क्रिएट करना है और उसके अंदर हमें सिंपल एक एडिशन की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यूजर जो भी नंबर टाइप करेगा उस नंबर को कोई प्लेस पे स्टोर करना पड़ेगा, राइट? तो वो जहां पर स्टोर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? दैट वी कॉल द वेरिएबल इज, राइट? वेरिएबल के अंदर आप कोई भी टाइप के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसके लिए var इज द कीवर्ड जो हम यूज करेंगे। सो var नंबर इक्वल्स टू 3, तो एक नंबर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा जिसके अंदर 3 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट इज द कंडीशनल एग्जीक्यूशंस, राइट? तो आपके पास दो स्टेटमेंट है बट यू वांट टू एग्जीक्यूट एनी वन ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट? फॉर एग्जाम्पल हमें एक सिंपल ऐसे एप्लीकेशन जनरेट करनी है कि जिसके अंदर यूजर एक नंबर एंटर करेगा, राइट? और हमें क्या करना है? हमें वो मैसेज डिस्प्ले करना है कि ये नंबर इवन है या ये नंबर ऑड है। तो हम क्या करेंगे? दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे। फर्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे इवन नंबर के लिए और सेकंड किसके लिए लिखेंगे? ऑड के लिए। बट हमें दोनों एग्जीक्यूट नहीं करने हैं, दोनों में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो फॉर दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे, राइट? तो दैट इज कॉल्ड कंडीशनल एग्जीक्यूशन। तो उसकी सिंटैक्स यहाँ पर है इफ के अंदर आपको कंडीशंस देनी है, बट कंडीशन हम ऐसी दे सकते हैं दैट विल रिटर्न अ बूलियन वैल्यू। दैट मीन्स वो कंडीशन आइदर ट्रू होनी चाहिए और फॉल्स होनी चाहिए, right? Not any other value should be written by conditions, right? अगर हम यहाँ पर if के अंदर जो भी condition लिखते हैं that condition is evaluated to true, तो वो if पार्ट के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो else पार्ट के अंदर स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, राइट? हम उसका एक सिंपल अगेन एग्जांपल देखते हैं। सो सपोज हमें इवन और चेक करने के लिए एक कोड जनरेट करना है, तो हम एक फंक्शंस बना देते हैं विथ इवन और। यहाँ पर हम वेरिएबल को भी लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं? एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर लेंगे, नंबर इज इक्वल टू समथिंग वी हैव एनी वैल्यू। आप यूजर से भी वैल्यू इनपुट करवा सकते हैं, राइट? यूजिंग डिफरेंट इनपुट कंट्रोल्स। नाउ आपको चेक करना है कि वेदर दिस नंबर इज इवन और ऑड, राइट? तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? कंडीशंस लिखनी पड़ेगी, राइट? नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द इवन और ऑड नंबर? तो द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 इज द इवन एंड विच आर नॉट डिविजिबल इज द ऑड। तो अभी डिविजिबल हुआ या नहीं वो कैसे चेक करेंगे? तो वो हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ द रिमाइंडर, कि अगर आप 2 से डिवाइड करते हो और उसका कोई रिमाइंडर आता है तो दैट इज नॉट इवन, एंड इफ रिमाइंडर इज 0 देन इट इज इवन। तो सिंपल कोड राइट हम ऐसे कर सकते हैं कि इफ नंबर मॉड्यूलो बाय 2, राइट? मॉड्यूलो इज यूजुअली यूज्ड टू रिटर्न द रिमाइंडर पार्ट। इफ दिस इज इक्वल्स टू 0, तो ये कंडीशन क्या होगी? आइदर ट्रू और फॉल्स, कि रिमाइंडर 0 है या नहीं है, राइट? वी गेट ओनली वन आउटपुट। तो इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड तो हम क्या लिखेंगे? तो इन दिस वी राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट even number, and if this condition is not satisfied तो हम else के अंदर जाएंगे और else के अंदर simply we write the message document dot write even and odd number, right? So this is a simple example. In this we use the function, we use the variable, and we use the if else also, right? We check the output for this also. हमने जो कोड कॉपी किया है, राइट? वो होल कोड आई पुट इनसाइड दिस
अभी हमने 3 नंबर पास किया था, राइट? तो दैट इज ऑड, तो हम इसको सेव कर देते हैं with even.html and I execute this code over here. हमें इसको बटन पे कॉल करना पड़ेगा बिकॉज हमने कहाँ पर लिखा है, बटन पे लिखा है, राइट? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू टेक द बटन एज वेल। तो यहाँ पर हम फॉन्ट फिल में जाएंगे एंड हम यहाँ पर एक बटन कर लेंगे, राइट? बिकॉज हमने देखा था कि आप फंक्शन को तब भी कॉल कर सकते हैं जब कोई इवेंट हो, अदरवाइज इट डोंट गिव द एनी आउटपुट, राइट? तो यहाँ पर हम बटन की वैल्यू को इवन ऑड लिख देते हैं। नाउ हम एडवांस एडिट के अंदर जाएंगे, राइट? यहाँ पर हमें अगेन कौन सी इवेंट पे काम करना है, वी वर्क ऑन द क्लिक इवेंट, और यहाँ पर हमें फंक्शन का नेम लिखना है। सो रिटर्न इवन ऑड, जो हमारा फंक्शन का नेम हमने यहाँ पर दिया था, दैट इज द इवन ऑड, एंड क्लिक ऑन द ओके एंड ओके। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट रिफ्रेश माय पेज। Now we have the button. Now I click on this button and the number will displayed over here, right? हमने 3 नंबर पास किया था, that's why it show the message odd number. अब ये मैसेज पॉपअप के अंदर भी पास कर सकते हैं, right? In this आपका जो बटन है वो as it is आपको HTML फॉर्म में डिस्प्ले करेगा, right? Document.write will open the new page basically for output. That's why you are not able to show the button. So let's understand what is the DOM is. That is a very important thing, right? So DOM is known as a document object model, right? वो क्या करेगा, तो हमारे जो ब्राउजर है, right? ब्राउजर के जो डिफरेंट कंट्रोल्स है, that will be the handled by the DOM, right? तो हमारे ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल को वो हैंडल करने का काम करेगा। नाउ हमारी जो ब्राउजर की विंडो होती है, राइट, इट इज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जिसको हम जावास्क्रिप्ट से एक्सेस कर सकते हैं। आपको ब्राउजर की कोई भी फंक्शनलिटी जावास्क्रिप्ट के एक्सेस करनी है तो उसके लिए हम ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल यूज करेंगे। नाउ वी हैव द हायरार्की फॉर दिस, right? In this, the window is the what? The window is known as the top level object into the browser object model, जो ऑटोमेटिकली ब्राउजर इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, राइट? वी डोंट नीड टू क्रिएट दैट। इनसाइड दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट वी हैव इज द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, राइट? हमने राइट मेथड के साथ भी क्या यूज किया था, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, राइट? तो इस हायरार्की के अंदर विंडो इज द टॉप ऑब्जेक्ट जो ऑटोमेटिकली ब्राउजर क्रिएट करेगा। यूजिंग दैट हम ब्राउजर के डिफरेंट ऑब्जेक्ट या डिफरेंट कंट्रोल को एक्सेस कर सकते हैं, राइट? और इनसाइड दिस फॉर जावास्क्रिप्ट फंक्शनलिटी वी आर यूजिंग द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर आप हायरार्की देख सकते हैं, आपका जो पूरा पेज होगा वो डॉक्यूमेंट होगा। डॉक्यूमेंट के अंदर हम डिफरेंट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट लिंक टैग, एंकर टैग इज दैट। फॉर्म के अंदर डिफरेंट कंट्रोल्स हमारे पास होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, टेक्स्ट एरिया, राइट? देन इनसाइड दैट सिलेक्ट टैग, रिसेट बटन, पासवर्ड, राइट? दैट ऑल द थिंग्स वी कैन access with the help of the document object. Now JavaScript के अंदर एक important method होती है, that is the focus method. Now focus method basically जब भी आप कोई पेज ओपन करोगे, right? Let's say we have the 2 text box and 1 button in our web page. अभी क्या करना पड़ेगा, if you want to enter value into the any of the text box, तो आपको उस text box पे क्लिक करना पड़ेगा and after that you have to enter the value, right? बट हमें क्या करना है, वी वांट कि फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ऑटोमेटिकली कर्सर प्लेस होना चाहिए सो दैट यूजर कैन डायरेक्टली वैल्यू एंटर कर सके। फॉर दैट वी कैन यूज द फोकस मेथड। डन। अगेन हमने वैलिडेशन की बात की थी कि आप जावास्क्रिप्ट का यूज करके पेज का वैलिडेशंस भी कर सकते हैं। डन। तो फॉर एग्जांपल एज है, राइट? तो एज के अंदर यूजर क्या एंटर कर सकता है, ओनली न्यूमेरिक वैल्यू, it should not be ABCD like that value। तो अगर आपको ये चेक करना है कि यूजर ने जो नंबर डाले, वैल्यूज डाली है, वो नंबर है या नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास अगेन वन बिल्ट इन फंक्शन इज दैट इज NaN। NaN stands for not a number। तो ये फंक्शन क्या करेगा, तो ये फंक्शन चेक करेगा कि वैल्यू नंबर है या नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल NaN के अंदर हमने 1 2 3 वैल्यू डाली है, राइट? तो दिस इज व्हाट नंबर नहीं होना चाहिए, तो वो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। और यहाँ पर क्या है? हेलो है, राइट? तो वो क्या रिटर्न करेगा? इट्स रिटर्न्स दी ट्रू बिकॉज इट्स नॉट अ नंबर, नंबर नहीं होना चाहिए, सो इन दैट केस इट रिटर्न्स अ ट्रू वैल्यू इन दिस। ओके, थैंक यू।